Hello students, exercise 8.1 up to question number 5 we have done. Today we have to start from question number 6. Question number 6 is if angle A and angle B are the acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is also equal to angle B. A and B acute angles हैं. Acute angles कौन से होते हैं? The angles whose measure is less than 90, 0 to 90. Cos A is equal to cos B given है. If cos A is equal to cos B, then we have to show that angle A is also equal to angle B. So see how we will do. Firstly, figure we will make. As A and B are acute angles, it means third वाला रह गया right angle तो ठीक है. तो third we have take given name C ना. A B C triangle we have made. A and B are acute angles और C हो गया हमारा right angle. Now cos A is equal to cos B given है. Firstly we will see what are their values. तो cos A की वैल्यू निकालेंगे. cos we know, cos is base by height and according to angle A, base and height are बेटा AC and AB. तो cos A की वैल्यू आ गई AC upon AB. Similarly cos B value, because cos is again base by height but for angle B now base will be BC. तो cos B की वैल्यू क्या आ गई BC upon AB. And it is given in the question that cos A is equal to cos B. So that means AC upon AB is equal to BC upon AB. ठीक है, दोनों के नीचे AB कैंसिल हो गए. So what we get? AC is equal to BC. Now see in the figure, if AC is equal to BC, because if triangles two sides are equal, then what does it mean? Opposite angles are also equal. AC और BC sides equal है, तो which angles are opposite to AC and BC? Of course angle A and angle B. तो angle A and angle B भी equal हो गया. Reason we can tell that angles opposite equal sides are also equal. So वहाँ से हमारे पास आ गया, then angle A will be also equal to angle B. Clear? ठीक है. Next देखो question number 8. If 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. 3 cot A equal to 4 given है and we have to check whether these two values are equal or not. मतलब their values are equal or not. तो see how we will do. 3 cot A equal 4 given है. That means cot A equal हो गया 4 by 3. 3 is in multiply. When we will take it to right hand side, it will go and divide 4 by 3 हो गया. And cot होता क्या है? Base upon perpendicular. तो 4 angle A, we have to draw the figure in this way that 4 angle A base और perpendicular क्या आ जाए बेटा? 4 and 3. ठीक है, ड्रॉ कर दिया फिगर, बेस और वो कर दिए 4 and 3. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज ऑल्सो वी विल फाइंड. हाइपोटेन्यूज भी निकाल ली, वो आ गई 5. तो नाउ टू चेक वेदर दीज टू वैल्यूज आर सेम और नॉट, वी नीड वैल्यूज. फर्स्टली वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ tan A, cos A एंड sin A. तो देखो वो वैल्यूज निकाल रहे हैं. tan A, cos A एंड sin A. tan A होता है P by B, परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB. इन दिस वे tan A, cos A और sin A तीनों वैल्यूज़ निकाल लें. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़. लेफ्ट हैंड साइड इज़ अवर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. पुट कर देंगे tan A की वैल्यू, सॉल्व कर दिया एंड वी गेट 7 अपॉन 25. सिमिलरली राइट हैंड साइड इज़ cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. अगेन वी विल पुट वैल्यूज़ हेयर एंड वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यू भी हमने सॉल्व करके वट वी गेट 7 अपॉन 20. तो वट वी कैन सी कि बोथ वैल्यूज़ आर सेम. तो वी विल से कि यस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आइए, क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25, पी क्यू इज 5. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड tan पी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट, है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट. एक पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है. वी नो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. वन साइड इज गिवन पी क्यू 5 है, बट अदर 2 साइड्स सम इज गिवन. इंडिविजुअली दे आर नॉट गिवन, दे हैव गिवन देयर सम. ठीक है. सो वी हैव टू टेल वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड tan पी. तो देखो वैल्यूज तो लेटर ऑन वी कैन टेल. फर्स्टली वी नीड वैल्यूज़ ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट. पहले अभी तीनों की वैल्यूज़ तो निकालें. तो देखो व्हाट वी विल डू फॉर दैट. कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम
है ना। पाइथागोरस थ्योरम वी विल अप्लाई इन द राइट ट्राइंगल। पी आर स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्केयर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन है, तो बेटा वहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस क्यू आर। दिस वैल्यू वी विल पुट इन द इक्वेशन विच इज पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। पुट कर देंगे पी आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 25 माइनस क्यू आर। सॉल्व कर दिया एंड वी गेट फाइनली दैट क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करके क्या आ गया, क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू कितनी है। इन स्टार्टिंग वी हैव सीन पी आर वैल्यू इज 25 माइनस क्यू आर 12 आ गया, पी आर 25 माइनस 12 13। सो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो नाउ दैट मीन्स दैट ऑल द 3 साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल आर विद अस। तीनों हमने फाइंड कर लिए हैं। एंड नाउ वी हैव टू टेल वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वी हैव टू सी दैट फॉर एंगल पी वट इज परपेंडिकुलर, वट इज हाइपोटेन्यूज, दैट आर क्यू आर एंड पी आर। वैल्यू पुट कर देंगे, 12/13 आंसर आ गया। सिमिलरली कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फॉर एंगल पी वी हैव टू सी वट इज परपेंडिकुलर, वट इज बेस, वट इज हाइपोटेन्यूज, दैट आर 5/13। वैल्यू आ गई 5/13। क्लियर। तो इन दिस वे वी हैव टू टेल वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन। क्लियर। तो टुडे इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इजी है, सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।